Morning students, I welcome you all for the political science session. Already we have started the fifth lesson, that is contemporary India, good governance. Today we are going to start with the third part of this lesson. Let's start with the lesson. Whatever slides I am showing you, that part we have already covered, means what is governance, citizen administration, the role, then evolution and meaning. In the second part we have completed globalization of the world and economy, international institution, non-state actors, what is civil society, good governance. We have seen the definition also. Refer the second video of this lecture. Then participatory, all that points I have covered with the second video of this lesson. Responsiveness, consensus oriented, equity and inclusiveness. After that, equity means what, effectiveness and efficiency means what, accountability, rule of law, accountability. These all points we have seen. Now in this lecture, what we are going to learn, again the same point they have been mentioned here, the same equity, consensus, responsiveness, transparency, this rule of law. Yes, we are talking about good governance. Now next part, page number 50. Till accountability we have finished. Next is initiatives for good governance and citizen centric administration in India. That part we are going to learn. Again the same concepts has been mentioned here, that citizen centric administration of India means what? The administration system which is focused on citizens. That thing we are going to learn here. Means in the point of view of citizens, means we commoners, what should be the administration system, what all things should be included in the administration, all that things are necessary in citizen centric administration. Okay, now after post independence period, India adopted a socialist and welfare model of development. We have already learned it in the lesson number first, I think second. Now means what? Means socialist and welfare model means what? Here we are focusing on people's participation. Okay, welfare model means what? For the welfare of people we are adopting, we have already adopted few models. So very first is socialist and welfare model. So in that, people's participation is most important. The approach is development administration approach, had a focus on people's participation. Despite periodic efforts and programs, genuine participation of people in the process of governance was not able to be achieved. But till yet we have not been achieved that participation of people. Okay, we all know about election system, or how the elections has been conducted by the election commission in our India. Then the question is about the transparency of election also. So there are a number of questions, there are a number of things which we can think of the transparency of election commission even. Fine. So see, that is not my approach, and I don't want to go deep in that transparency. But yes, we till yet we have not been able to achieve that transparency. हमने अभी तक वो जो पारदर्शिता कहते हैं वो हमने अचीव नहीं की है, क्योंकि हम सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, इलेक्शन के टाइम में क्या क्या होता है, इलेक्शन के टाइम में कौन से डिफ़िकल्टीज़ आती है, ये सब हमें पता है. एज पर द स्टेट्स वी नो ईच एंड एवरीथिंग. Fine, and that is why till yet we could not achieve the 100% participation of people. Okay,
Let's see next the Department of Administrative Reforms and Public Grievance under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. Government of India looks after administrative reforms in India. ये सब काम किया जाता है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट्स है. तो इससे ये मीन्स दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम. ओके. And government of India looks after administrative reforms in India. Administrative reforms means what? Reform means revolution. We can say improvement, development. ये सब development day by day means at the time passes the development is going on. Okay. Next is its objectives are to promote administrative reforms in government policies, structures and processes. अभी हमें क्या करना है? Yes, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गवर्नमेंट पॉलिसी दी है, स्ट्रक्चर दिया है, प्रोसेस दिया है, लेकिन एज पर द टाइम पासिस, एज पर द एरा, वी नीड टू मेक चेंजेस इन द पॉलिसीज, वी नीड टू मेक चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑल्सो. फाइन. सो दैट प्रोसेस इज ऑल्सो गोइंग ऑन. एज आई टोल्ड यू दैट वी आर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. हमें चेंज चाहिए एज पर द 21st सेंचुरी. देयर शुड बी चेंजेस इन लॉ, देयर शुड बी चेंजेस even in the law and order process also, executive, legislature and jurisdiction, judiciary. We want the changes, so that reform, that changes are going on day by day. Fine. Promote citizen centric governance with emphasis to on grievance redressal and conduct innovations in e-governance. अभी क्या हो रहा है, जैसे रिवॉल्यूशन हुआ है, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन भी हुआ है, तो वैसे ही हमारे गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं. अभी हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज़ भी है. जैसे हमने आरटीआई का देखा, आरटीआई एक्ट पास हो गया, तो उसमें क्या है, हमें सब इन्फॉर्मेशन मिलती है. अभी ई गवर्नेंस है, वो क्या है, वो ई गवर्नेंस मीन्स ईच एंड एवरी थिंग विल बी कंप्यूटराइज्ड इन गवर्नमेंट. फाइन. नाउअडेज ऑल द वर्क इज़ डन बाय द कंप्यूटर्स. सो हमने ये काम, नया इनोवेटिव काम शुरू किया है हमने, मतलब हमारे गवर्नमेंट ने. द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन वॉज सेटअप विथ अ mandate to prepare a blueprint for revamping. Revamping means to improving the public administration system in India. It was expected to suggest measures to achieve a proactive, responsive, accountable, sustainable and efficient administration for the country of levels of government. Again, they have given the same. If we want to implement or if we want to establish good governance, we have to think about proactiveness, responsive, accountability, sustainable and efficient administration. In the second part of this video, of this lecture, I have explained everything. Means what does it mean by responsive. Next, I have explained even the accountability or accountable, consensus oriented, then follow the rule. All that points I have been explained in second part of this lesson or second video of this lesson. You just go through it, so you will get it more. Fine. Now under the title of good governance, we have a citizen centric administration system. So citizen centric administration system में ये सब आते हैं, accountable, transparent, responsive, ये सब हमारे इसमें है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन में. ये सब गुड गवर्नेंस के अंडर आता है. फाइन. ये हमने देखा है. गो थ्रू द सेकेंड वीडियो. नेक्स्ट, द कमीशन मेंटेन दैट गवर्नेंस in order to be citizen centric, page number 51. I am talking about page number 51. The commission maintained that governance in order to be citizen centric should be participative and transparent. Again the same, participative means the people, common people, they have to select and elect their own representative, and these representatives will be part and parcel of administration system. So in this way we can come or we can achieve the participative approach. Second is again transparent.
हाउ मच ट्रांसपेरेंट आर गवर्नमेंट इज़, कितनी पारदर्शिता है हमारे गवर्नमेंट में, वो भी हमें देखना है. देन हाउ मच इफेक्टिव इज़, हाउ मच एफिशिएंट द गवर्नमेंट इज़, हाउ मच रिस्पॉन्सिव टू द सिटीजन्स. मतलब सिटीजन्स मतलब जो हम नागरिक हैं उनके प्रति ये सब कितने रिस्पॉन्सिव है, कितने जवाबदार है, ये सब हमें देखना है. तो अगेन दे हैव रिपीटेड द सेम पॉइंट. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड आल्सो बी अकाउंटेबल टू द पीपल. येस, गवर्नमेंट के लोगों ने हमें ये सब क्या बोलते हैं हम, दे हैव टू टेल ईच एंड एवरीथिंग व्हाट दे आर इम्प्लीमेंटिंग. उन्होंने हमें जवाब देना है कि वो जो कुछ काम करते हैं उस पे हम लोगों ने चेक रखना चाहिए, और उसको हम अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं. मतलब क्या काम करते हैं. अगर कॉरपोरेटर है तो कॉरपोरेटर का काम क्या है, उसके वार्ड का जो पूरा वेलफेयर कहते हैं और उसके वार्ड के डेवलपमेंट का जो कुछ काम है, वो सब जिम्मेदारी किसके ऊपर रहती है, वो कॉरपोरेटर के ऊपर. तो वो काम करता है या नहीं, वो कौन कौन से सुधार लाता है, वो कौन कौन से नए स्कीम लाता है, ये सब हमने चेक करना चाहिए. तो उसको हम और उन्होंने भी वहाँ पे रिस्पॉन्स देना चाहिए, तो उसको हम अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं. देन one of the primary functions of the state is to promote the welfare of its citizens. मतलब अगेन द सेम, सिटीजन्स के प्रति हमें वेलफेयर जो एक्टिविटीज़ है वो रखनी चाहिए. Therefore an evaluation of the functioning of the institution of governance will ultimately have to be based on the satisfaction they provide to the citizen. ये सब जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव के जो लोग हैं वो ये सब करते हैं तभी क्या होता है, सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट मिलते हैं. किसको सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट मिलते हैं, लोगों को, जो कॉमन पीपल है उनको क्या मिलता है, सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट मिलते हैं. सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट मीन्स व्हाट, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स. मतलब अभी टेक वन एग्जाम्पल ऑफ मोदी गवर्नमेंट. 5 years was actually 5 years is the tenure of each and every government. Before 5 years the Modi government was there. Now again it has been elected twice, means second time also the Modi government has got elected by the citizens, by the common people. Why? Because they are producing, they are giving us results. Means whatever they are running administration, we are getting results also. The Modi Sarkar, they are implementing lots of new schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana, then to build toilets in each and every village. Means ये बहुत सारे schemes है, बच्चों के लिए schemes है, बूढ़ों के लिए स्कीम्स है, जिसके पास घर नहीं है उन लोगों के लिए स्कीम्स है. कुशल किसान योजना हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है. मतलब जो पीजेंट्स है, जो ये है फार्मर्स है, अगर उनके पास स्किल है लेकिन पैसे नहीं है, उनके पास कुछ काम नहीं है करने के लिए, ज़मीन नहीं है, तो उनके लिए भी उन्होंने अलग अलग योजनाएं चालू की. तो ये क्या है, ये रिजल्ट्स है. रिजल्ट हमें मिलते हैं, सिटीजन्स को मिलते हैं. और तो बाद में सिटीज़न क्या करते हैं, जो पीपल है इंडिया के, वो क्या करते हैं, फिर से उन्हें ही एक मौका देते, चांस देते कि आपने अभी तक पिछले 5 साल में बहुत अच्छा किया है और हमें ये बिलीव है कि अगले 5 साल भी आप अच्छा ही करोगे, नए नए योजना लाएंगे. इवन अयोध्या का एग्जाम्पल ले लो, बाबरी मस्जिद का एग्जाम्पल दे दो, वो सॉर्ट आउट हुआ है प्रॉब्लम, और अभी अयोध्या में राम मंदिर बनना चालू हो गया है. तो ये क्या है, ये रिज़ल्ट है. और इससे जो सिटीजन्स है, इससे जो नागरिक है वो सेटिस्फाइड है. इसीलिए वो क्या करते हैं, अगेन चॉइस एंड वॉइस ऑफ द पीपल, मीन्स इट इज़ बिन सेड दैट चॉइस एंड वॉइस शुड बी ऑफ द पीपल. सो ये पीपल का ही चॉइस है और ये पीपल के ही, लोगों के ही वॉइस है. ओके. In particular, the second administrative reforms commission looked at the following issues to revamp the traditional public administration. Again, go to the page number 51. They have mentioned 3 points.
One is accountable and transparent government, that already we have covered. Second, make administration more result oriented. result oriented मतलब अभी मैंने जो बोला कि अगर गवर्नमेंट रन हो रहा है, एक कोई भी पार्टी अगर रूलिंग पे है तो उन्होंने क्या क्या काम किया है, वो कुछ प्रोडक्टिव काम किया है क्या, उसके लिए हमें क्या रिजल्ट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चाहिए. एंड आफ्टर थर्ड इज़ सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो कुछ आप एडमिनिस्ट्रेशन सरकार लाए हैं तो वो सिटीज़न के प्रति, लोगों के प्रति क्या होना चाहिए, उपयुक्त तो होना चाहिए और लोगों का उसका बेनिफिट मिलना चाहिए. ऐसा ही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो. रिफॉर्म्स चाहिए, वेलफेयर स्कीम्स चाहिए, नए नए योजना चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए. जो कुछ लेजिस्लेटिव जो कुछ निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है, उस पर एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए. अभी पैंडेमिक सिचुएशन में लेजिस्लेचर ने क्या किया, नया रूल बनाया कि मास्क इज़ कंपलसरी. एग्जीक्यूशन ने क्या किया, सभी पुलिस को, सभी कर्मचारियों को बताया कि ये कंपलसरी है मास्क पहनना. अगर उन्होंने नहीं, मतलब नागरिक ने, लोगों ने नहीं वो फॉलो किया तो आपको उनको फ़ाइन करना है. अगर इसमें ही कुछ डिस्प्यूट आते हैं तो वो जुडिशरी के पास जाते हैं. फाइन. तो ये क्या है, ये एक सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन है कि लोगों के लिए, लोगों के प्रति लोगों ने ही बनाई हुई एक सरकार. तो ये हो गया, ये 3 पॉइंट्स हो गए. अभी उसमें क्या दिया है इन्होंने, देयर हैव बीन अ लार्ज नंबर ऑफ रिफॉर्म मेजर्स विच हैव सॉट टू ब्रिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर टू द पीपल. अभी इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ. सॉट टू ब्रिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर टू पीपल, मतलब लोगों के पास ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जाना चाहिए. तो कैसे जाना चाहिए, अगर मुझे आधार कार्ड और पैन कार्ड नया बनाना है तो मैं कहाँ पे जाऊँगी. हर टाइम हम ऑफिसेस में नहीं जा सकते, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, एक नया इट्स नॉट एन व्हाट वी कॉल, योजना नहीं है ये, लेकिन महा ई सेवा केंद्र, आपने ये सुना होगा. महा ई सेवा केंद्र मीन्स ई लर्निंग. जैसे ई मतलब क्या, सब कंप्यूटराइज, इलेक्ट्रॉनिक जो सर्विस बोलते हैं ना हम, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस हमारे आसपास चालू कर दे. मतलब हर एरिया में आपको महा ई केंद्र और महा ई सेंटर्स आपको दिखाई देंगे, और उस सेंटर्स में आप जाकर, अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट निकाला है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी आपका काम हो, तो आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं और आप आपका काम करवा सकते. देन अगर आपको अगर लैंड खरीदनी है, लैंड बेचनी है, तो उसके अगर आपको कागज़ बनाने हैं, तो ये सब काम कहाँ से होता है, वो महा ई केंद्र से और महा ई सेवा केंद्र से होता है. देन ये एक एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के पास आई है, लोगों को सर्विस देने के लिए उन्होंने यह नया एक क्या बोल सकते हैं हम, सेंटर्स निकाले हैं. नेक्स्ट, व्हाट दे हैव स्टार्टेड डूइंग और व्हाट इनिशिएटिव दे हैव टेकन, एनेक्टिंग लॉज गिविंग सर्टन राइट्स टू पीपल. यस, हमें राइट मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स. आई एम नॉट गोइंग टू डीप इन दैट फंडामेंटल राइट्स. You can get that fundamental rights in the 11th standard also. Then setting up of new institutional mechanism to redress citizens grievances. Okay, next is setting up new institutional mechanism to redress citizens grievances. Citizens grievances means what, complaints. Fine, we have many complaints and we want the answer or solutions of that complaints. So whose this responsibility? It's a administrator's responsibility to redress the grievances. Redress means what, to repair, to amend or to give compensation to the people. मतलब क्या है, अगर हमारे कुछ जो कंप्लेंट्स है, जो हमें कुछ ऐसा लगता है कि हमारे वार्ड में अच्छा नहीं हो रहा है, रोड्स ख़राब है, गार्बेज डिस्पोजल का प्रॉब्लम है, वो नहीं हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को हम कहाँ पे लेके जा सकते हैं, हमारे कॉरपोरेटर के पास लेके जा सकते हैं. तो अभी कॉरपोरेटर एक ये मैकेनिज़्म का पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन के मैकेनिज़्म का पार्ट है. तो उसने क्या करना चाहिए, उसने वो रिड्रेस करना चाहिए. रिड्रेस मीन्स व्हाट, टू रिपेयर, to make amend or to what we call it,
जो हम बोलते हैं ना कि अगर कुछ कंप्लेंट्स है तो वो सॉल्व करने चाहिए, उस पर कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए, तो ये रिड्रेस करना चाहिए। फाइन, ये काम किसका है? वो गवर्नमेंट मैकेनिज्म का है। थर्ड, इम्प्रूविंग एक्सेसिबिलिटी टू सिटीजन्स बाय सेटिंग अप यूनिट्स क्लोजर टू पीपल। मतलब जो कुछ एक्सेसिबिलिटी है गवर्नमेंट के, वो यूनिट्स लोगों के आसपास, मतलब लोग जहाँ पे जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के आसपास ऐसे यूनिट्स देने चाहिए। फॉर एग्जांपल महाई सेवा केंद्र। सेकंड इज़, अगर आपको ये भरना है, लाइट बिल भरना है, देन आपको अगर पानी का बिल भरना है, टैक्स भरना है, तो वो एरिया वाइज सबके जो ऑफिसेस है वो लोगों को अवेलेबल करना है, वो एक्सेस देना है, एक्सेसिबिलिटी देनी है। तो ये सब क्या कैसे होता है? एरिया वाइज। मतलब भारतीय विद्यापीठ में कहाँ पे है, मैं कहाँ पे जाके लाइट बिल भर सकती हूँ, मैं कहाँ पे जाके मैं अपना पानी जो बिल है वो भर सकती हूँ, और मैं मेरा मोबाइल का बिल भर सकती हूँ, टैक्स भर सकती हूँ। ये सब एरिया वाइज रहता है और वहाँ पे जाके हम वो काम कर सकते हैं। ये एक्सेसिबिलिटी भी लोगों के नज़दीक देनी चाहिए, ये भी उनका ही काम है। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर टू रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक्स डिले। अभी क्या है ब्यूरोक्रेटिक्स मीन्स व्हाट? ये जो लोग काम करते हैं, जो ऑफिसर्स है, वो कभी कभी ये भी करते, डिले करते। डिले मतलब हाँ करेंगे, अभी नहीं, बाद में काम करेंगे, उसके बाद में काम करें, ऐसे डिले करते। तो ये जो है ये प्रोसीजर हमें रिड्यूस करनी है, लोगों पे चेक रखना है। मतलब जो ऑफिसर्स लोग हैं, जो ऑफिशियल्स है, उन पे हमें क्या करना है? चेक रखना है। तो उसके लिए भी प्रोसीजर है कि हम एप्लीकेशन दे सकते हैं, मैं पिटीशन दे सकती हूँ, और हम उन लोगों पे, जो लोग प्रशासक लोग हैं, उन पे हम चेक रख सकते हैं। देन यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव इंटरनल एफिशिएंसी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब कंप्यूटर है, इंटरनेट है, और जो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं उसका इस्तेमाल करके हम ये जो मशीनरी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है वो रन स्मूथली कर सकते। देन रिवॉर्डिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु परफॉर्म वेल। मतलब ये हमें शाबाशी भी देनी चाहिए जो लोग अच्छे काम करते, मतलब गवर्नमेंट में रहकर भी वो वेलफेयर के काम करते, उन लोगों को हमें क्या देना चाहिए? रिवॉर्ड्स, वी नीड टू गिव रिवॉर्ड्स। देन इम्प्रूविंग डिसिप्लिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन रखनी चाहिए। आप अगर देखते हो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, लेट मी कंपेयर इट। गवर्नमेंट में लोग 11 बजे से पहले कभी काम को जाते ही नहीं, क्योंकि उनके ऊपर कुछ दबाव नहीं रहता है कि आपको 10 बजे ही आना है, 9 बजे ही आना है, कभी भी जाते हैं, कभी भी घर जाते आते हैं। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कैसे रहता है? हमें थंब रहता है। तो उसमें क्या है, अगर आपको 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे ही आना चाहिए। 9:01 भी हो गया तो आपका लेट मार्क लगता है। ऐसे 3 लेट मार्क लगने के बाद आपकी 1 डे सैलरी कट होती है। तो ऐसे गवर्नमेंट में रूल नहीं है कि आपके 3 लेट मार्क लग गए आपको सैलरी कट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये डिसिप्लिन हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी लगानी चाहिए। देन रिड्यूसिंग रेगुलेटरी कंट्रोल, होल्डिंग पब्लिक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। मतलब हमें कुछ पब्लिक प्रोग्राम्स भी रखने चाहिए, उसके थ्रू हमें पब्लिक के वेलफेयर के लिए सोचना चाहिए। ये देखो पेज नंबर 52 पे आपको 2 पिक्चर्स मिलेंगे। वहाँ पे एक है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया, वन पिक्चर इज द डायलॉग विद सिटीजन्स इन अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस एट द जनता दरबार। ये एक जनता दरबार वहाँ पे है, और लोगों के जो कुछ पॉइंट्स है, जो कुछ प्रॉब्लम्स है, और जो कुछ ग्रीवियंसेस है, ग्रीवियंसेस मीन्स कंप्लेंट्स, उसको रिड्रेस करने का काम ये लोग कर रहे हैं। सेकेंड पिक्चर है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया, करेक्शंस इन आधार कार्ड बीइंग मेड एट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस। यस, आधार कार्ड, उस पर अगर हमें नया आधार कार्ड बनाना है, आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज करना है, और हमारा फ़ोन नंबर चेंज कर, कुछ भी हो, रेशन कार्ड निकालना है, इसके लिए हमारे नज़दीकी एरिया में एक्सेस देना चाहिए। मतलब जो ऑफिसेस है उसका एक्सेस रहना चाहिए। ये सब काम ये लोग करते। Let us discuss some of the specific programs that aim at bringing good governance in India. So in the next lecture we'll think about the गुड गवर्नेंस इन इंडिया। कौन कौन से है उसमें? लोकपाल है, लोकायुक्त है, सिटीजन चार्टर्स है। ये सब हम क्या करेंगे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये पढ़ाऊँगी। तो चलो फिर, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, विल स्टॉप हियर, स्टे सेफ, गुड बाय।